ये पैसेज हम लोग का होमवर्क में था और आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? कई लोगों ने बनाया है लेकिन गलत गलत बनाया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पैसेज देख लेते हैं। पैसेज किसको किसको समझ में आया? क्या था पैसेज में? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलिए फिर आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए, देखिए फिर आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन में जो पैसेज हमने लास्ट किया था? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग पैसेज रीड कर लेते हैं फटाफट, ताकि हम लोग इसके ऊपर ये कर सके। पैसेज सबको दिख रहा है ना? यस सर। सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिख रहा है मुझे। चलिए माही पढ़िए, तो क्या है पैसेज, एक बार पढ़ दीजिए फटाफट। Believe me, if you two had पढ़िए। हाँ सर, एक सेकेंड। ये पैसेज Believe me, if you two had to remain close for an entire year, you two would often see things beyond bounds, but feelings cannot be ignored, no matter how wrong or in ingratitude they may seem. I am eager to drive, to bicycle, dance, see, and the whistling word. They myself feel young. I want to feel that I am free, but I cannot, I cannot show all these. Imagine how act of when we sit down, feel sorry ourselves, and clearly see justification on our faces. What will happen then? Um, what will happen then? Where will this position lead us? I sometimes wonder if your body will ever understand what I want to say. Can one ever see then I am a G or not, or ignoring all my ingratitude, not caring for my ingratitude, for all my gratitude to see wants to have some fun and play. I do not, I don't know, and I shall never be able to tell anyone about it. That is because I shall start crying makes the mind. But this crisis should not be alone, in spite of all my efforts and beliefs. I am hearing day and night for a mother who could understand me. So whatever I do with writing and writing, I always imagine a mother too would like to be a child. Later on, a mother does not take everything said of people very seriously, but I take my daughter. डॉटर के बाद अच्छा, और भी है क्या?
seriously, I always imagine such mother that I would like to be while bring up my children. What I wanted to tell is difficult for my, but my world mother explain it all by herself. चलिए ठीक है, इन्होंने पढ़ दिया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो पैसेज को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे पैसेज हम लोग पढ़ेंगे उसी पे उसका मीनिंग जो है डिपेंड करेगा कि हमारे दिमाग में कितना जाता है। अगर हम लोग पैसेज पढ़ना ही नहीं जानेंगे तो हम लोग के दिमाग में वो मीनिंग भी नहीं आएगा, ठीक है? सॉरी सर, मैं थोड़ा डर डर के पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिएगा, अगली बार भी आपको ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो पैसेज है इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो एक चीज और मैं देख लेता हूँ। अर्चना पढ़िए, 3-4 लाइन पढ़िए फटाफट। Yes, sir. Believe me, if you two had to remain closed for an entire year, you two would often see things beyond bounds. But feelings cannot be ignored, no matter how wrong or ingratitude they may seem. I'm eager to drive a bicycle, dance, see the whistling world, make myself feel young. I want to feel that I am free, but I cannot show all this. Imagine how 8 of us, when we sit down, feel sorry for ourselves and clearly see dissatisfaction on our faces. What will happen then? Where will this position lead us? I sometimes wonder if anybody will ever understand what I want to say. Can one ever see that I am a Jew? And not by ignoring all my ingratitude, not caring for all my ingratitude. She wants to have some fun and play. I do not know, and I shall never be able to tell anyone about it. That is because I shall start crying. Crying makes the mind lighter, but these cries should not be in all alone. In spite of all my efforts and beliefs, I'm yearning day and night for a mother who could understand me. So, सर उसके नीचे का so whatever I do with writing, and while writing, I always imagine a mother who would like to be a child later on. A mother who does not take everything said by people very seriously, but I take my daughter seriously. I always imagined such mother that I would like to be while bringing up my children. What I wanted to tell is difficult for me, but the word mother explains it all by herself. सर चलिए उसके ठीक बाद है, ये हमने पढ़ लिया 2 बार। तो एग्जाम में भी जब हम लोग के पास पैसेज आता है ना, तो हम लोग को पैसेज दिया जाता है कोई भी, तो उसका हम लोग पढ़ने का तरीका भी ठीक से रखेंगे ताकि वो जो पैसेज हमें समझ में आए, ठीक है? पेपर 1 हमें देना है तो पेपर 1 में पैसेज भी आएगा, तो पैसेज पढ़ने का तरीका भी हमें आना चाहिए। कि ऐसा नहीं हमने पढ़ा कि बिलीव मी इफ यू टू हैड टू रिमेन क्लोज फॉर एन इंटायर, फिर ईयर अलग कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा ये पैसेज पढ़ना गलत हो जाएगा। तो पैसेज पढ़ने का जो तरीका है वो भी हमारा सही रहेगा, तो हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी पैसेज घुसेगा। जैसे यहाँ पर है बिलीव मी, ठीक है? तो उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, तो बिलीव मी हम लोग को एक साथ पढ़ना है। अब देखिए इफ यू टू हैड टू रिमेन, ठीक है? तो इफ यू टू हैड इसको एक साथ पढ़ेंगे, फिर टू रिमेन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? या फिर टू रिमेन क्लोज्ड, ठीक है? इसको एक साथ कर देंगे फॉर एन इंटायर ईयर, तब हम लोग को ये समझ में आएगा। लेकिन अगर हमने पढ़ा कि क्लोज फॉर एन इंटायर, फिर उसके बाद ब्रेक लिया, फिर बोला ईयर, तो फिर ये इंटायर एन इंटायर के साथ आ गया, आगे वाले शब्द के साथ आ गया, तो हमें वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे इंटायर ईयर, तो हमें पता चलेगा कि हाँ इंटायर ईयर मतलब होता है पूरा पूरा का पूरा साल, ठीक है? तो हम तो पढ़ने के ऊपर भी हम लोगों का पैसेज जो है डिपेंड करता है कि हम लोग पढ़ते कैसे है। जो हम लोगों का मतलब ऐसे पढ़ेंगे हम लोग
कि हम लोग को पैसे समझ में आए, ठीक है? तो जिसके साथ जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम लोग उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ पहला हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ये जो ट्रांसलेशन हमने लिया था इसमें मैं ये एक कॉपी लेता हूँ, ये अदिति की कॉपी है, ठीक है? इन्होंने किया था, देखिए इसमें कुछ-कुछ अलग-अलग है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है की, ठीक है? बीच में की लिख दिया है जबकि ये की का जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है? तो सिली-सिली मिस्टेक्स यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है? तो ये सब मिस्टेक्स हम लोग नहीं करेंगे, आज कॉपी पे ही चर्चा होगी। थोड़ी-थोड़ी सब कोई अपना एक बार देख लेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए कल्पना कीजिए कि कैसे हम 8 जब हम लोग, ठीक है? एक तो ये हम लोग आ गया, यहाँ पर भी हम लोग, मतलब एक हम यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे। तो एक ही सेंटेंस में 2-2 सेम चीज़ यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर खुद से जो है एक साथ चिपक गया तो ये भी होना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है? और ये सब का तो हम लोग खास ध्यान रखेंगे, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद लगभग ठीक था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसी इसलिए क्योंकि मैं रोने लगूंगी, तो ये सेंस नहीं बन रहा है, ऐसी इसलिए क्योंकि मैं रोने लगूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर चेंज करके हम शायद लिख सकते थे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं रोने लगूंगी, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं रोने लगूंगी, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को पैसेज को, जैसा हम लोगों को पैसेज मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है? इनको मिला है 27 नंबर, कुल मिला के इनका ठीक था, ठीक है? तो इसको हम लोग बंद करते हैं। सर बहुत प्रॉब्लम आता है बनाने में सर। मैं तो ये वर्ड का ना मैं ये हेल्प लेती हूँ गूगल से। सर इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए ये जो पैसेज है हमारा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यू टू वुड ऑफन सी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब टू का यूज नहीं जानेंगे, वुड का यूज नहीं जानेंगे, ऑफन का यूज नहीं जानेंगे, ठीक है? तो हमसे नहीं बनेगा ये, ठीक है? तो हम लोग को टू का भी यूज जानना चाहिए, वुड का भी यूज हम लोग को जानना पड़ेगा, और ऑफन भी हम लोग कहाँ लगाते ये भी हम लोग को जानना पड़ेगा। ऑफन का मीनिंग क्या होता है? तो जो वर्ड्स है, ठीक है, जैसे ये इंटायर हो गया तो इंटायर का हम लोग को मीनिंग जानना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए फोर आ गया यहाँ पे, तो फोर किसके किसके लिए आता है वो जानना पड़ेगा। टू किसके के लिए आता है, किस चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं वो जानना पड़ेगा, ठीक है? रिमेन का मतलब जानना पड़ेगा, तब हम लोग इसको बैठा पाएंगे। और हैड कहाँ पे लगता है, और हैड टू कहाँ पे लगता है, ठीक है? तो हैड टू कहाँ लगता है, जहाँ पे हम लोगों का बाउंडेशन हो, जहाँ पे बंधन हो कि ये काम हम लोग को करना ही पड़ेगा, या फिर इस तरह से सेंस आएगा कि ये काम मुझे करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा। ये सब जब आता है तो हैड टू या फिर हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है? पास्ट हो गया तो ये पास्ट आएगा, और हैव टू रहा तो ये प्रेजेंट पड़ता है, या फिर पड़ेगा। विल हैव टू रहता तो पड़ेगा, और हैड टू है तो पड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये पड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे सेंस आ रहा है पास्ट का। तो ये सब जब हम लोग यूज सीखेंगे नहीं तो हम लोग इसको सेंस नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि सेंटेंस हम लोग को लिखना कैसे है, ठीक है? तो ये सब चीज हम लोग को आना चाहिए, नहीं तो हम लोग ट्रांसलेशन में क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। हम लोग से ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं बनेगा, वो क्वालिटी हमारे पास नहीं आएगी जो सेंस हम लोग को इस पैसेज में मिल रहा है। और लगभग मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, देखिए मैं अभी गलती दिखाता हूँ। देखिए इनकी कॉपी में बहुत गलतियां थी तो मैं इसको करेक्शन ही नहीं कर पाया। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस में इनका लेता हूँ, चाहे वह कितनी भी गलत या अकृतज्ञता लगे, ठीक है? ये भी अकृतज्ञता यहाँ पे होता नहीं है वर्ड, ठीक है?
मैं साइकिल चलाने के लिए उत्सुक हूँ, नृत्य के लिए, धुन भरी दुनिया को, अपने आप को युवा महसूस करने के लिए। तो ये के लिए पे खत्म हो रहा है, ठीक है, जबकि ये खत्म होना चाहिए इसके 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 लिए उत्सुक हूँ। यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खत्म हो रहा है के लिए पे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्होंने जो सेंटेंस बनाया बहुत ही अ, मतलब ये बनाया है, गलत ही बन जाएगा लगभग। वह खुद वह कुछ आनंद चाहती है, आनंद और खेल। तो ये क्या सेंस आ रहा है मुझे पता नहीं चला कि वो क्या आनंद चाहती है, आनंद और खेल। तो ये जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो खुद भी पढ़ के देखेंगे कि हाँ ये कुछ मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो हम लोग ग्रामर देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, ग्रामर में हमें हो सकता है नहीं पता चले कि यहाँ पे क्या मतलब सेंटेंस बनेगा। लेकिन जब हम लोग मीनिंग देखें कि हाँ यहाँ पे क्या वर्ड था उसका मीनिंग देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग वर्ड देखेंगे, ठीक है, उससे क्या मीनिंग निकल सकता है उसको देखेंगे। अगर मीनिंग आसपास भी मिला तो उसके बाद जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी का सेंटेंस या फिर इंग्लिश का सेंटेंस जब बनाएंगे, वो सेंटेंस मेरा क्या होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब वो सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए वह कुछ आनंद चाहती है, आनंद और खेल, तो ये क्लियर ही नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसलिए जो भी मैं अपनी लिखाई करती हूँ, लिखाई करती हूँ से क्या मतलब है। जब हम लोग हिंदी भी लिखेंगे मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन, तो हिंदी का जो सेंटेंस बनाएंगे वो अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर वो भी नहीं है, इसलिए जो भी मैं अपनी लिखाई करती हूँ और लिखाई के वक्त में एक माँ की कल्पना करती हूँ। तो ये जो सेंस हम लोग लिख रहे हैं, ये जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, वो हिंदी के मतलब हिंदी को भी बेस मानेंगे तो भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे तो मुझे ट्रांसलेशन समझ में ही नहीं आ रहा है इंग्लिश का जो पैसेज है। उसके बाद मैंने जो बनाया हिंदी का सेंटेंस वो भी गलत बनाया है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को थोड़ा सा एकदम दिमाग लगा के, अगर मेरे से नहीं बन रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी का जो सेंटेंस है वो हम लोग अच्छे से बना लें। भले वो सेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जब वो सेंटेंस पढ़ने वाला पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं चलो सेंटेंस तो इसमें सही सही बनाया है, ठीक है। तो दिमाग में बात जा रही है मेरे कहने का क्या मतलब है। चलिए जी निशा, सर, अच्छे से निशा समझ आ रही है। निशा बताइए मैंने क्या कहा, क्या यस मैं सर। इंडिकेट कर रहा हूँ। सर आपने बोला है कि अ, हिंदी में अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी भाषा की जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप सर होना चाहिए, नहीं तो वो गलत मीनिंग भी दे सकता है। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं मेरे से, मैसेज पे आते हैं, मान लेते हैं मेरे से ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट फीलिंग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि फीलिंग्स मतलब हो सकता है इमोशन हो या फिर कुछ ऐसा वर्ड हो। इग्नोर मतलब हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो ग्रामर यूज किया गया ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो अब मान लेते हैं फीलिंग्स मैंने लिख दिया, फीलिंग्स को क्या कहते हैं, फीलिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। सर भावना, भावना महसूस करना। हाँ, महसूस करना या फिर भावना। महसूस तो करना। भावनाएं सर, भावनाएं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउन की जरूरत है तो नाउन यूज करेंगे। भावनाओं को आ, अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। हमने लिख दिया भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते या फिर नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर नहीं करेंगे, ये हम लोग लिख देंगे।
ऐसा मेरा सेंटेंस हिंदी का हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी का जो सेंटेंस है वो कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं इसने कंप्लीट सेंटेंस बनाया है। ठीक है, भले भावनाओं को अगर मेरे दिमाग में आया नहीं कि भावना है इसका हिंदी, तो हम लोग फीलिंग्स भी लिख देंगे तो फीलिंग्स को अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग को हिंदी का जो सेंटेंस होगा जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वो मेरा कंप्लीट होना चाहिए। ये आगे पीछे उड़ता हुआ हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हुई इनको, मैं यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाया इनके कॉपी में। ठीक है, चलिए अगली कॉपी में आप लोग एक बार देख लीजिए कि किसका किसका क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोगों का अगला कॉपी है ये। अब इनकी जो कॉपी है इसमें वर्ड्स जो है बहुत गड़बड़ गड़बड़ लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि इनके कॉपी में इनका जो क्या था वो कैब हिंदी की जो है वो भी कमजोर है। जैसे विश्वास करें अगर आपको भी पूरे साल के लिए बंद होना पड़ेगा, यहाँ पर बंद होना पड़ेगा या फिर बंद होना पड़े तो आप भी अक्सर ये सीने से परे चीजें देख पाएंगे। तो ये सेंस क्या आ रहा है, अब जो पढ़ेगा उसको तो लगेगा कि क्या है सीने या फिर सोने। ठीक है, यही सब आएगा, वो सोचेगा दिमाग में उसके यही सब आएगा, तो वहां पर वो क्या नंबर देगा, नहीं देगा। उसके बाद देखिए लेकिन भावनाओं को अनदेखा नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे इनकी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, चाहे वह कितना ही, तो ही की स्पेलिंग चाहे वह कितना ही गलत था, कृतज्ञता क्यों न हो, जिज्ञासा है साइकिल चलाना नृत्य करना, मतलब इनका सेंटेंस भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इनके उसके बाद देखिए इनमें सबसे बड़ी गलती हो रही है कि इतना लिखने के बाद ये बार बार काट रही है। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग को करना नहीं है और इस तरह से तो काटना ही नहीं है। सिर्फ मुझे काटना है तो एक बार ऐसे प्लेन पेन चला दिया बस वो कट गया। ठीक है, और ये जितना हो सके गलती ये उतना जल्दी सुधार ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे में भी वैसा ही है। यह क्या लिखा है, पद हमें कहाँ ले जाएगी, मैं, तो मैं हो गया, यहाँ पर मैं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर मैं हो गया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कोई कभी समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या है, क्या की कि इसमें क्या है कि ये जो नरेटर है वो फीमेल है और सभी लोगों ने क्या किया, मेल की तरह इसको ट्रीट किया। ठीक है, आप लोगों ने पूरा पैसेज एक बार पढ़ा भी नहीं, बस ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब पता चला कि हाँ ये नरेटर जो है फीमेल है इसमें, तो भी आपने करेक्शन नहीं किया। ठीक है, अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। ये थोड़ी कि आप लोगों ने एग्जाम दे दिया उसके बाद कॉपी आपको मिलेगी नहीं, आप लोग उसको करेक्ट करके दे देते। ये अंतिम जब हम लोग पहुंच रहे हैं, ये देखिए जब कॉपी के अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अ, अब देखिए यहाँ पर तड़प रही हूँ, यहाँ पे इनको पता चल गया कि ये जो है नरेटर फीमेल है, फिर भी इन्होंने ऊपर में करेक्शन करके दोबारा नहीं लिखा, उसी को चला दिया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें हम लोगों को सुधारना है। देखिए ये बनना, ठीक है, तो ये सब बहुत सारी मिस्टेक्स है इसमें, बहुत ज्यादा। और ये इतना ज्यादा कट मार्क यहाँ पे आ रहा है हर लाइन पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बैड इम्पैक्ट डालता है, तो इसको एकदम सुधार लेना है। अर्चना आपको पता चल रहा है गलती कितनी है आपकी? अर्चना चली गई क्या?
दिख नहीं रही है, ठीक है चलिए अगले कॉपी पे चलते हैं। चलिए मनीषा की कॉपी में आते हैं। इनकी कॉपी थोड़ी बहुत ठीक थी, 24 आया हुआ है इनका, लेकिन इनको भी बहुत थोड़ा सा ना इसको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। और इनकी जो है हैंडराइटिंग बहुत चिपकी चिपकी है, इनको थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे कितना अलाइनमेंट का कितना ये है, ये एकदम नदी के धारा की तरह टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को नहीं चलना चाहिए, हम लोग को सीधा सीधा एक के नीचे एक आना चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा लिखेंगे तो इसके लिए अलग से नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो है आप लोग जितने भी है ये सब बातें जो है ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग कॉपी करके फिर आते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए ये मीनाक्षी की कॉपी है, ये भी कॉपी जो है वैसी ही है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि चाहोगे, ठीक है चलिए यहाँ पे तो चल जाएगा। स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है सर। हाँ वो तो है ही, वो तो ब्राइटनेस बढ़ा के करना पड़ता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नरेटर है जो बोलने वाला है वो मेल है, ठीक है। यहाँ से भी पता चल रहा है सकता, चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद असंतुष्टि, ये भी वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। असंतोष कर सकते हैं, असंतुष्ट कर सकते हैं। आश्चर्यचकित होता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते नीचे, अब यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे ये फिर फीमेल हो गई, नरेटर जो है फीमेल हो गई। मैं अपनी बेटी को गंभीरता से लेती हूँ। अब फिर यहाँ पे मेल हो गया, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है बार बार, तो ये होना नहीं चाहिए था। यहाँ पर क्या है, इनको मैंने लिख भी दिया, पैसेज को एक बार पूरा पढ़ना चाहिए था, ठीक है। और इनको मिला है कितना, 5 नंबर मिला है। तो जो भी पैसेज हम लोग को मिलेगा वो अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे पूरा तो ये सब गलती होगा ही होगा, और लास्ट में नंबर कितना आएगा, यही 5 6 10 यही सब आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग एकदम ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं और क्या क्या हम लोगों को सुधारना है। और आप लोग भी देख लीजिए कि दूसरों की गलती से क्या क्या सीखना है, ठीक है। ये भी इनका ठीक था। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, तो हम में से 8 जन अपने लिए खेत महसूस करते हैं। तो 8 जन क्या होता है, 8 जन तो हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं 8 लोग। नंदिनी है अभी अवेलेबल की सोने चली गई? चलिए ये नहीं है, दिख रही है, लगता है नहीं है। तो ये इस तरह का जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करें, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा वो हम लोग कम से कम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने, वह कुछ मौज मस्ती हंसी मजाक और खेलना चाहती है, मुझे नहीं पता है और मैं इसके बारे में किसी को कभी नहीं बताऊंगी। तो इस सेंटेंस में मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आखिर कहना क्या चाह रही है नरेटर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत है। उसके बाद देखिए और लेखन दौरान, यहाँ पर लेखन के दौरान, लेखन की दौरान, ये सब जो भी आएगा के की को, वो सब सारा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे बच्चा बनाना चाहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे इसका वो पूरा पूरा समझ नहीं पाई है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है।
हाँ गोल गोल है ना। चलिए ये पूजा की कॉपी है, पूजा है अवेलेबल। यस सर। चलिए आपकी कॉपी पे नजर डालते हैं। जैसे हम लोग क्यों देख रहे हैं सबकी कॉपी, क्योंकि हम लोग वो गलती ना दोहरा दे जो इन लोगों ने दोहराई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन था इसमें मैंने थोड़ा सा ये किया है, क्यों किया है वो भी आप लोग देखिएगा कि मुझ पर विश्वास करें, यदि आपको वर्ष भर के लिए बंद रहना पड़े, ठीक है, तो आपने अक्सर सीमा से परे चीजों को देखा होगा। रहना पड़े ये कंडीशनल और ये फ्यूचर वाला सेंटेंस हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को सेंटेंस को हम लोग को पैरेलल रखना चाहिए था। ठीक है, तो आपने अक्सर सीमा से परे चीजों को देखा होगा, इसको चेंज हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पढ़े तो यूज कर लिया इन्होंने, बंद रहना पड़े तो आपने अक्सर सीमा से परे चीजों को, तो आपको यहाँ पर हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो आपको अक्सर सीमा से परे चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया मेरा पढ़े, और यहाँ पर हो गया पढ़ेगा। तब जो भी पढ़ेगा वो सेंटेंस, तो उसको लगेगा कि हाँ ये दोनों सेंटेंस जो है सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ठीक है, तब वो सेंटेंस हम लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, वो मैच करेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे किया नहीं गया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे वो अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों को सिंक कर दें। मतलब ऐसा ना लगे कि ये सेंटेंस पूरा अलग है, ये सेंटेंस पूरा अलग है, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है, तो से जोड़ा है, तो आपको अक्सर सीमा से परे चीजें दिखी होंगी या फिर आपको देखने को मिली होंगी, इस तरह से, या फिर आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। हैंड राइटिंग ठीक है। उसके बाद देखिए इस बारे में किसी से कभी नहीं, देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं, मैं नहीं जानती और मैं इस बारे में किसी से कभी नहीं पाऊंगी। तो क्या पाऊंगी, क्या क्या नहीं पाऊंगी, सर? पैसे नहीं पाऊंगी। मिस हो गया वर्ड, कहना। हाँ ये आपने लगता है कहना कहीं आया सर। रफ में बनाया होगा। ठीक है, उसके वर्ड बाद मिस। शेयर किया होगा। ठीक है, यस सर। तो ये सब चीज अगर हम लोग बनाएंगे, अभी प्रैक्टिस में ही कोशिश करेंगे कि ये सब गलती ही ना हो, जो भी गलती हो प्रैक्टिस में हो, हमारे यहाँ पे इधर हो, एग्जाम में ये सब पूरा रिफाइन होके जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमेशा माँ की कल्पना करती है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, इसलिए जो भी मैं लिखती हूँ और लिखते समय मैं हमेशा माँ की कल्पना करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, है हो गया, तो इस तरह का मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए नॉट सेटिस्फैक्टरी वाक्य नहीं बन रहे, अनुवाद भी सही नहीं है। ठीक है, 50 में से 8 नंबर ही मिले हैं आपको। ठीक है, जो पैसेज है उसके हिसाब से आपका नहीं बना है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अभी पैसेज मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके सर। चलिए इनकी कॉपी में देखिए मैंने पहले लिखा था यू शुड रीड द पैसेज वंस, मतलब एक बार आपको पढ़ना चाहिए था। बंद रहना पड़े तो आप अक्सर सीमा से परे देखना चाहते हो, तो यहाँ भी वही चीज है, जो बैलेंस है वो नहीं बन पाया सेंटेंस का, कि पहला सेंटेंस जिस ये तरीके से लिखा गया है, दूसरा सेंटेंस उस तरीके से नहीं लिखा गया है। मतलब दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो कोई तुक नहीं बन रहा है कि दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड है। दूसरा क्या है, मैं महसूस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, इन्होंने सबको बनाया है मेल कैरेक्टर। ठीक है, जो नरेटर है वो मेल है। ठीक है, फिर
यहाँ पर क्या है, अधि, तो ये अधि क्या है, तो ये सभी वर्ड इस तरह का हम लोग जितना हो सके उतना ध्यान देंगे कि इस तरह का वर्ड हम लोग को लिखना ही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं तो एक बार पढ़ेंगे कि हाँ क्या हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अधि अकेले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अधि का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद देखिए इनका जो ऊपर में था नरेटर मेल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए मैं जो भी लेख लिखती हूँ उसमें मैं एक माँ की कल्पना करती हूँ। तो इनका नरेटर जो है क्या हो गया, मेल से फीमेल हो गया है। ठीक है, उसमें चाहती है, तो ये भी जो है बैलेंस नहीं बना। सेंटेंस का चाहती हूँ इस तरह से हो सकता था, लेकिन सेंटेंस हम लोग देखेंगे क्या है शुरुआत से। तो इनका भी वही चीज है कि मेल से फीमेल हो गया नरेटर। ये कैसे ये लोग जादू कर दे रहे पता नहीं, पूरा पैसेज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, स्कैन जो है इन्होंने किया ही नहीं प्रॉपरली। ये क्या है, ये चौकोर सा क्या है। आप लोग सेल्फी लेते वक्त इतना ध्यान देते हैं कि हाँ मेरा फेस सही है, मुस्कान सही है, होंठ सही है, नाक सही है। ठीक है, मोबाइल फोन। मुझे पता है ये मोबाइल फोन है, ठीक है, उसकी परछाई है। लेकिन जब हम लोग जब सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, तब हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इसमें क्यों नहीं ध्यान रखते। भगवान इसीलिए आप लोगों को डिले दे रहा है, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरे रिफाइन हो जाएंगे वहीं से आपका रिजल्ट शुरू हो जाएगा होना। ठीक है, तो आप लोग एकदम छोटा से छोटा भी काम करें तो उसमें रिफाइनमेंट होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो बस इसी में लगे रहते हैं कि सेल्फी लेना है, हाँ नाक तिरछा नहीं आए। अगर हम लोग आपके चेहरे पे तोते वाले नाक लगा देंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर और भी ज्यादा आप लोग खूबसूरत दिखेंगे। तो जब हम लोग स्कैन करते हैं तो स्कैन के टाइम में हम लोग क्यों नहीं ध्यान रखेंगे कि स्कैन जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैंने कोई भी पेपर का जो स्कैन दिया, बुक का भी जो स्कैन दिया, जो भी मेरे पीडीएफ थे, उसमें कुछ भी ऐसा आपको दिखा कि अलाइनमेंट में गड़बड़ है या फिर कुछ ऐसा है कि लेफ्ट राइट दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा होगा। मेरे कोशिश में तो हमेशा रहता है कि पूरा रिफाइन हो। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा कोशिश नहीं कर रहे, तो भगवान आपको जब तक पूरा प्योर ना कर दे तब सर तक मैं आप कुछ लोग बोल को। क्या बोलिए। सर आपने वो ऐप दिया है ना, उसी से वो क्लियर, वो अदर सारा कुछ का कट के बस आपका पेज का आ जाता है, जो आपने ऐप सजेस्ट किया था वो पीडीएफ बनाने का। हाँ, तो उसमें उंगली भी अगर आ जाता है तो उंगली भी वो हटा देता है। ठीक है, जनरली वो जी सर। उंगली अगर आ जाता है पकड़ने में तो उंगली भी वो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वाइट कर देता है। तो वो ठीक है, उसमें ऐड भी नहीं है, और मतलब कुल मिला के ठीक है। अभी पता नहीं ऐड आता होगा कि नहीं, मेरे पास जो है वो लगभग ठीक है, और वाइट आता है, कोई नहीं आता दिक्कत है है नहीं। सर, नहीं आता है। तो कोई ऐड वैड तो है नहीं। उसके बाद फोटो भी उससे अच्छी आती है, मतलब ऐसा है कि जो पढ़ने लायक हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और फोटो तो सब डीपी पे अच्छे अच्छे लगा रहे, लेकिन स्कैन करने के वक्त हाथ कांप जाता है सबका। तो इसको चेक करने में कैसा लग रहा होगा मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया, ये भी कॉपी है, पूरा अंधकार भरा है, गुफा में खींची होगी फोटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा विश्वास करें, इन्होंने यहाँ पे खड़ी पाई दे दी, तो यहाँ पे खड़ी पाई की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और ये कृतज्ञ लिखा है इन्होंने, मतलब अजीब तरह की तरीके से लिखा है, तो ये भी चलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है, मेरा विश्वास करें यदि पूरे साल आपको कहीं बंद होना पड़े तो आप चीजों को सीमा से परे देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने बैलेंस किया नहीं, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा उससे चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनका नजदीक गया है, और इन्होंने फीमेल को फीमेल ही रखा है, कहीं पर मेल कहीं पे फीमेल, ऐसा
नहीं किया। जैसे यहाँ पे यह सब दिखा नहीं सकती, ठीक है, तो ये फीमेल है, पता चल रहा है। ठीक है, जो पैसेज था वो इन्होंने पढ़ लिया पूरा, उसके बाद इन्होंने किया है। ठीक है, तो इनका लगभग अच्छा था ट्रांसलेशन, तो ये सही हुआ है। ठीक है, तो और बाकी भी थे कॉपीज, ठीक है, लेकिन उसमें नाम वगैरह नहीं था, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ कि सर एक नाम, बार मेरी कॉपी से बता दो। नेम और डेट लिखना जरूरी है। सर मेरी कॉपी में। तो आपकी कॉपी किस नाम से थी? सर जिस डेट को आप होमवर्क देते हो वो डेट मेंशन करना है, या जिस डेट को मैं बनाऊंगी वो डेट को मेंशन करना नहीं, जिस पड़ेगा? डेट का होमवर्क है उस डेट को मेंशन करना रहता है। ठीक है, जैसे ये कॉपी जो था रश्मि ओके का, सर। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था रश्मि पांडा 24 अक्टूबर, हिंदी टू इंग्लिश, ये भी लिखा हुआ था। तो आपको कम से कम नाम लिखना है और डेट तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि पता चलेगा ना कि ये इतने डेट का होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद नाम से पता चलेगा। फाइल में आप लोग नाम ही नहीं देते, डॉक्यूमेंट कभी लिख के भेज देते हैं, लेकिन मैं हर बार करता हूँ। एक तो मुझे यही परेशानी होती है कि किसका कितना नंबर आया, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको मुझे क्या बोलना है। ठीक है, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा किसकी कॉपी मैंने चेक की, वो तो डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, मैं डॉक्यूमेंट में चेक कर देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट में ही रह जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा मैंने बोला कि कॉपी भेज दीजिए, तो कई लोगों ने कॉपी भी नहीं भेजा है। ठीक है, तो मैं बैठता हूँ तो लगभग कोशिश करता हूँ कि सारी कॉपी में चेक कर दूं, लेकिन आप लोग ध्यान देते नहीं है। वही अगर किसी को कोई टॉन्ट कर दे तो पूरा एकदम महाभारत वहीं पे शुरू हो जाता है, लेकिन जब काम की चीजें होती है आप लोग देखते नहीं है। चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो सॉल्यूशन हम लोग का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पैसेज था थोड़ा सा सर टफ था। मेरी कॉपी। आपकी कॉपी शायद मैंने चेक नहीं की थी, दिया था मैंने चेक करके। तो चेक हुई है। दिया जी। किस नाम से सर था? मैंने आपको अपनी कॉपी शेयर करी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अभी कैसे होगा? तो आपने भी तो वही किया, डॉक्यूमेंट लिख के भेज दिया है। तो डॉक्यूमेंट से कैसे पता चलेगा किसका डॉक्यूमेंट है? सर मेरे पे नाम लिखा हुआ प्रतिभा गुप्ता। नहीं, प्रतिभा गुप्ता आपका नाम सर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब बोला था ना दोबारा भेज देने के लिए, लेकिन आपने भेजा ही नहीं था। ठीक है, और वो मिक्स हो गया था उसमें, वो शायद चेक हुआ नहीं हुआ। इसलिए इसमें मैंने कितना दिया था, 10 नंबर दिया था। बहुत ही बुरा नंबर आया इनका भी। देखिए यहाँ पर जो पैसेज था उसमें जो आपने ट्रांसलेशन बनाया वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया, सोचो कि हम 8 लोग एक साथ बैठे होंगे और युद्ध और ये खुद के प्रति अफसोस जता रहे होंगे और हमारे चेहरे पर असंतुष्टता स्पष्ट नजर आ रही होगी, तब क्या होगा? तो ये जो सेंटेंस है, ये जितना भी आपने बनाया है ना, वो पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आपका ट्रांसलेशन अलग है और पैसेज अलग हो गया, मतलब ये पढ़ सर के वो। मेरी कॉपी नहीं है। ये निशा की कॉपी है। सर ये मेरी कॉपी है जी हाँ सर। वही तो बोल रहा हूँ मैं, निशा की कॉपी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन है ना, आपने अलग बनाया है और पैसेज कुछ और बोल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट गुड। जैसे मान लीजिए कोई एक पैसेज है, आपके पास समय है, तो उसको 3-4 बार पढ़िए, नहीं आ रहा है फिर पढ़िए, अगर उस समय नहीं आ रहा 2 घंटे बाद पढ़िए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर हमसे
मिस हो जाती है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, एक दिन बाद पढ़ेंगे, वो समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरा यकीन मानो। अच्छा चलिए इसमें से अदिति पढ़िए, क्या है हिंदी। पढ़ती हूँ सर। मेरा यकीन मानो, अगर तुम्हें भी पूरे बरस तक इसी तरह बंद रहना पड़ता तो कई बार तुम्हें भी चीजें हद से परे नजर आती। लेकिन भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती, भले ही वे कितनी भी गलत या कृतघ्न क्यों कृतघ्न नजर आए। मैं साइकिल चलाने, नाचने, सीटी बजाने, दुनिया को देखने, खुद को जवान महसूस करने के लिए तड़पती हूँ। कसम कसमसाती हूँ। कसमसाती हूँ। सही क्या? अच्छा, कसमसाती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं यह सब दिखा नहीं सकती। ज़रा कल्पना करो कि हम आठों के आठों अपने आप के लिए अफ़सोस मनाते घूमते रहें और हमारे चेहरों पर असंतोष साफ-साफ लिखा हुआ नज़र आए। क्या होगा तब? ये स्थिति हमें किस ओर ले जाएगी? मैं कई बार हैरान होती हूँ कि क्या कभी कोई इस बात को समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्या कभी कोई मेरी सारी कृतघ्नताओं की अनदेखी करके और इस बात की परवाह ना करके कि मैं यहूदी हूँ या नहीं, सिर्फ़ यह देखेगा कि मैं एक किशोरी हूँ, जिसे सिर्फ़ सिर्फ कुछ मज़े लेने, खेल-कूद लेने की उत्कट चाह है। मुझे नहीं पता और मैं कभी किसी से इस बारे में कह भी नहीं पाऊँगी। इसकी वजह यह है कि मेरी रुलाई फूट पड़ेगी। रोने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन ये रोना अकेले में नहीं होना चाहिए। मेरी सारी कोशिशों और मान्यताओं के बावजूद मैं दिन-रात चौबीसों घंटे एक ऐसी माँ के लिए तड़पती हूँ, जो मुझे समझ सके। इसलिए मैं लिखने और कहने के साथ जो कुछ भी करती हूँ, मैं हमेशा एक ऐसी माँ की कल्पना करती हूँ, जो बाद में मैं अपने बच्चे पालते समय होना चाहूँगी। एक ऐसी माँ जो लोगों की कही हर बात को बहुत गंभीरता से ना लेती हो, लेकिन मुझे अपनी बेटी को गंभीरता से लेकिन मुझे अपनी बेटी को गंभीरता से लेती हो। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यह कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन माँ शब्द अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है। तुम जानती हो मैंने क्या तरीका अपनाया है? मैं माँ शब्द की गरिमा को महसूस कर सकूं, इसलिए हमेशा मम्मी को माँ या इससे मिलते-जुलते शब्दों से पुकारती रहती हूँ। कभी उसका नाम बिगाड़ भी देती हूँ। काश मैं उनका सही तरीके से आदर कर पाती। मैं जो भी नाटक करती रहती हूँ उनके साथ है, वे समझ नहीं पाती, नहीं तो उनकी नाराज़गी ही बढ़ेगी। देखिए कुछ नीचे के 1-2 लाइन है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जी सर। लेकिन ये पैसेज क्या था, थोड़ा सा टफ था। दूसरा क्या था कि इसमें बहुत बड़ी सीख हमें मिल गई कि इस पैसेज को देख के हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कोई भी पैसेज अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग को पैसेज पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक नजर सरसरी निगाह से हम लोग देख लेंगे उसको, पैसेज क्या है, कौन है, नरेटर कौन है। ठीक है, इससे क्या आइडिया मिल गया कि हम लोग शुरू से उसको लेके चलेंगे, हाँ वो फीमेल है और हम लोग को शुरू से वो फीमेल लेके चलना है। ठीक है, आधे अधूरे में हम लोग पढ़ जाएंगे, फिर पता चलेगा आधा कॉपी तो ऐसी हो गया, फिर पूरा काटना पड़ेगा, कॉपी गंदा। तो अब ये सीख मिल गई हमें कि ये पूरा पैसेज हम लोग को पहले पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया, पहला काम। दूसरा क्या है कि ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, हो सकता है हम लोग को समझ में नहीं आए तो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के इसको करेंगे। व्हेन वी सिट डाउन, जैसे व्हेन वी सिट डाउन हमने लिखा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जब, अब मैंने ये समझ गया, मैं ये समझ गया कि ये वाला सेंटेंस यहाँ पे छोटा छोटा करके बहुत सारा जुड़ा हुआ है। जैसे इमेजिन हाउ 8 ऑफ अस, कल्पना करें हम लोग 8 में से। व्हेन वी सिट डाउन, जब हम लोग बैठते हैं। फील सॉरी, जब महसूस करते हैं सॉरी फॉर आवर सेल्फ, अपने लिए दुख महसूस करते हैं। एंड क्लियरली सी डिससेटिस्फेक्शन ऑन आवर फेसेस,
और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने फेस पे, चेहरे पे देख सकते हैं कि हम लोग असंतुष्ट हैं। स्पष्टता हम अपने चेहरे पर असंतुष्टता या फिर आ, हाँ, ऐसा असंतुष्टता देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि हम लोगों को छोटा छोटा वर्ड को पकड़ना है, उसको ट्रांसलेट करना है और कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया, तो हम लोग इमेजिन को लिख लेंगे कल्पना। ठीक है, भाव का कैसे, पेट का 8, ऑफ अस में से। ठीक है, उसके बाद अस का हम, तो इसको हमने लिख लिया। तो हम में से 8, इमेजिन करें, इमेजिन करें हम में से 8। तो ये क्या करेंगे, पहले हम लोग अलग अलग वर्ड को लिख लेंगे, उसका हिंदी क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग उसको सेंटेंस में अरेंज कर देंगे। ठीक है, हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो इंग्लिश होगा तो इंग्लिश के हिसाब से करेंगे, हिंदी होगा तो हम लोग हिंदी के हिसाब से करेंगे। तो ऐसे हम लोगों को ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी पैसेज मिलेगा आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस या फिर पैसेज जो है, ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में है कि पास्ट है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग शुरू से ही वो स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ कैसे कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, सबके दिमाग में यही है बात। जी सर। जी सर। यस सर। चलिए, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, आप लोगों को डोज ज्यादा मिल गया। आप थोड़ा सा सीरियस होके, और पैसेज में इसलिए करा रहा हूँ, ट्रांसलेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रूल पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर सके। जब रूल अप्लाई करेंगे तभी वो दिमाग में आपके रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, एक तरफ से हम लोग घुसाएंगे, दूसरे तरफ से निकल जाएगा सारा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो ये एक पैसेज और मैं दूंगा, ट्रांसलेशन कुछ मैं दूंगा, आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, टाइम मैं बता दूंगा, हो सकता है अभी शायद कल क्लास हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। सर कल रख लीजिए, उसके बाद छठ पूजा के बाद रखिएगा प्लीज। हाँ, छठ पूजा में छुट्टी रहेगा, तो कल हो सकता है रहे क्लास, और मैक्सिमम होगा तो परसों भी हो सकता है, उसके बाद फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर एक ही बात, फ्राइडे के बाद ही होगा क्लास। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं। ये पैसेज मैं दे दूंगा, ये ट्रांसलेशन वाला, आप लोग एक बार फिर से देखिएगा और समझिएगा, अपना आंसर शीट जो है मिलाइएगा उससे। ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है। सेंटेंस को हम लोग तरीका अलग कर सकते हैं लिखने का, लेकिन हम लोग का सेंस वही आना चाहिए। अभी ये हिंदी करने को दिया था तो ये बन गया, अगर ये इंग्लिश करने को दिया होता तो आप लोग और ज्यादा गलती करते। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में फेमिलियर नहीं है। हिंदी में जितना फेमिलियर हम लोग कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, इंग्लिश में उतना नहीं लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, किसी किसी को अगर देखा जाए तो वो हो सकता है। और कॉपी पे जो फाइल आप लोग देंगे उसमें अपना नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और डेट लिख दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा स्कैन अच्छे से हो। स्कैन नहीं होगा तो फिर वो चेक नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 2-3 कॉपी तो मैंने चेक नहीं की, शायद एक कॉपी रिजेक्ट भी मैंने लिखा है, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं है प्रॉपरली। अब मैं क्यों अपने आंखों को खराब करूं? ठीक है, आपकी लापरवाही से मेरी आंखें क्यों खराब हो, इसलिए मैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आराम से अच्छे से स्कैन कीजिए। उतना मेहनत से आप लोग लिख रहे हैं, सिर्फ स्कैन के चक्कर में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और भगवान देख लेता है कि इनको इसी तरह इतना छानना है, इतना छानना है कि ये पूरा परफेक्ट हो जाए, तब जाके गवर्नमेंट जॉब देंगे। ठीक है, तो अभी इतना कंपटीशन है, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे काम करने का। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही हम लोग को बड़ा बना देती है। चलिए चलते हैं, अब रात भी बहुत हो गई, आप लोग भी सोने को
मतलब ये हो रहे होंगे आतुर, हिंदी आ रही होगी। और किसी को कुछ पूछना है? सर, इस तरह के पैसेज आते हैं तो उनके ट्रांसलेशन के लिए, जैसे आपने बताया मेरा सेंस ही उल्टा हो गया, तो मुझे उल्टा नहीं नॉवेल्स हो गया, वगैरह पढ़नी जैसे पड़ेगी। नहीं, नॉवेल्स पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको, ट्रांसलेशन में ज्यादा दिमाग देना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा डिफरेंट पैसेज था तो आपका गलत हुआ, बाकी अगर नॉर्मल रहता तो आपका सही हो जाता। इसका मतलब क्या है कि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इस तरह का पैसेज आएगा तो मेरे से हो जाएगा, और इस तरह से आएगा तो मैं उसी धार में वही सब काम कर दूंगी। तो वो चीज हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग जो ट्रैक पे चल रहे हैं, हो सकता है कि हमें फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगानी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना है कि पैसेज हो सकता है हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उठते बैठते, तो लिटरेचर का पैसेज के अलावा कुछ और भी पैसेज आ सकता है। उसके लिए भी हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड सर प्रैक्टिस। सर ये पैसेज जो है ये टेंस के हिसाब से या भावानुवाद के हिसाब से, मैं दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए? देखिए, एग्जाम में बोलता नहीं है कि भाव का अनुवाद करना है कि वर्ड टू वर्ड करना है, आप लोगों को देखना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन नहीं, एग्जाम्पल दिया था आकाशवाणी का। रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी बोलते हैं, जबकि रेडियो और आकाशवाणी दोनों एकदम, अगर ट्रांसलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन क्या है, काम सेम है। रेडियो में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट होती है आवाज, और हमें सुनाई देती है। ठीक है, उसी तरह आकाशवाणी में क्या होता था, जब वो कंस को आकाशवाणी आती थी, यहाँ यही बच्चा जो है तुम्हें मारेगा। ठीक है, तो वो भी क्या होती थी, वो आकाश से वाणी निकलती थी, ये भी आकाश से वाणी कन्वर्ट होके आती है हमारे पास। तो जो हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है, जब ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे तो उसी तरह का होना चाहिए। मतलब जो पढ़ने वाला है वो उसके सेंस को लेके एकदम ये हो जाए, टकरा जाए। अब क्या था, अभी ऑफिस का हाल ही फिलहाल एक काम था, में क्या था कि लिखा हुआ था, इस तरह से था। नहीं, ये था शायद, ये था दिस टास्क वाज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अब इसका क्या सेंस आ रहा है, किसी को कुछ आइडिया है इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? दिस टास्क वाज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, क्या बनेगा, नेहा बताइए। सर यह कार्य इस गलियारे में नहीं कार्यान्वित है। ठीक है, और कोई? प्रतिभा, क्या बनेगा? प्रतिभा है नहीं, सुषमा क्या बनेगा? सुषमा भी नहीं है। सर इसमें सर इसमें ये बनेगा कि यह कार्य जो दिया जा रहा है, यह योजना जो की जा रही है, इस गार्डन में नहीं कार्यान्वित होगी। ठीक है, निशा बताइए। सर, ये लिटरल मीनिंग तो नहीं दे रहा है, कुछ और होगा, वो मैं भी नहीं बना पा रही हूँ। प्रेम बताइए। सर यह कार्य बगीचे में नहीं है। प्रेम प्रेम तो नहीं बता पा रहे, सुजीत बताइए।
बगीचे में कार्यान्वित नहीं होंगी। ठीक है रविकांत बताइए। प्रतिभा बताइए। चलिए हो गया, अभी तक राइट आंसर नहीं मिला। ठीक है तो मैं बता सर देता मैं हूँ। बोलूं, बताइए। यह कार्य इतना आसान नहीं है। यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। ठीक है, यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। यहाँ पर क्या है, वॉकिंग इन द गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, आराम से टहलते हैं। तो एक तरह से लाइजरनेस का होता है सेंस। ठीक है, तो ये वाला काम इतना आसान नहीं था, बोलना था। तो उसने क्या लिखा, वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो अब हम लोग को पता होना चाहिए कि वॉकिंग इन द गार्डन का सेंस क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉकिंग इन द इडियम हो गार्डन। सकता है, इडियम यूज हुआ है सर ये वॉकिंग इन द गार्डन। इट इज इडियम। ठीक है, तो वो हमें बाद में पता चला। लेकिन जब टास्क हम लोग देख रहे हैं, दिस टास्क वाज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, हम लोग को सोचना चाहिए कि नहीं, इधर जो है कुछ जरूर गड़बड़ है। ठीक है, तो गार्डन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वॉक तो कर सकते हैं। तो वॉकिंग करते करते हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, रिलीफ लेते हैं, मेंटल और फिजिकल। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग को सोचना है। और एग्जाम में भी ऐसा ही सेंटेंस हो सकता है आ जाए, उसके लिए हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, टफ से टफ सिचुएशन के लिए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब चलिए मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, गुड नाइट। अब जो बोलना होगा आप लोग मैसेज में बोलिएगा। ठीक है, ओके ओके, नमस्ते सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नमस्ते नाइट। सर। नमस्ते।